تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شجر انعام میمن کی سربراہی میں 4 رکنی عمل درآمدی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ حکومتی پالیسی اور عمل درآمد کمیٹی کے قیام کے 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف سیکرٹری سندھ سرکاری پالیسی پر عمل درآمد کے لیے متحرک آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ سندھ حکومت کا بڑا قدم، اخراجات کم کرنے کے لیے کفایت شعاری پالیسی نافذ۔ نازک بین الاقوامی صورتحال پر سندھ حکومت متحرک، کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ افسران اور ملازمین کے پیٹرول کوٹے میں 50% کٹوتی، 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ صوبائی وزراء مشیر جون 2026 تک تنخواہ رضاکارانہ طور پر وصول نہیں کریں گے۔ 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے افسران کی ماہانہ تنخواہ سے 2 روز کی کٹوتی ہوگی۔ ارکان سندھ اسمبلی کی تنخواہ سے ماہانہ 50% کٹوتی کی جائے گی۔ تمام محکموں کے بجٹ کی چوتھی قسط میں 20% کٹوتی کی جائے گی۔ نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری سامان کی خریداری پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ وزراء مشیروں ارکان اسمبلی کے بیرون ممالک دوروں پر جانے پر بھی پابندی۔ سرکاری طور پر ڈنر افطار ڈنر پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ فزیکل اجلاسوں پر پابندی عائد کر کے اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سرکاری طور پر سیمینار، ٹریننگ، کانفرنسز پر بھی پابندی لگ گئی۔ سرکاری خرچ پر کھانے پینے کی اشیاء خریدنے پر بھی پابندی ہوگی۔ سندھ حکومت کی کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی کے سربراہ سینئر صوبائی وزیر شجر انعام میمن کو مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار، صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی، صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ بھی شامل ہیں۔ عمل درآمد کے حوالے سے چیف سیکرٹری کی صدارت میں کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ کابینہ کی جامع کفایت شعاری اور پیٹرول بچاؤ منصوبے سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ سندھ میں 4 روزہ ورک ویک ہوگا۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ سرکاری دفاتر میں 50% عملے کو ورک فرام ہوم کے تحت کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آصف حیدر شاہ نے ہدایت کی کہ تمام سیکرٹری کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ آزاد نہوڑیوں، سٹی 21۔ ملک کی کفایت شعاری مہم میں ارکان سندھ اسمبلی کو شامل کیا جائے۔ سندھ حکومت نے اسپیکر کو خط لکھ دیا۔ خط میں ملک میں کفایت شعاری مہم میں ارکان سندھ اسمبلی کو شامل کرنے کی تجویز۔ خط میں لکھا گیا کہ وزراء اور مشیران کی طرح ارکان اسمبلی بھی اپنی تنخواہ سے 25% دیں۔ اسمبلی کے افسران اور کمیٹیوں کے ارکان نے پیٹرول کوٹے میں 50% کم کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کفایت شعاری مہم میں ارکان کو شامل کریں۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت کا خط اسپیکر ویس قادر شاہ کو موصول ہو گیا۔ سندھ حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ صوبہ بھر کے اسکولز اور کالجز کو 16 سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد محکمہ اسکول ایجوکیشن اور محکمہ کالجز ایجوکیشن نے الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی دونوں اسکولز اور کالجز پر ہوگا۔ حکام کے مطابق تعلیمی ادارے بند رہنے کے دوران طلبہ کی کلاسز آن لائن جاری رہیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہونے کے خدشات پر خام تیل کی قیمتوں میں پھر تیزی آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق G7 ممالک کی سپلائی بڑھانے کے پلان کے باوجود خام تیل کی قیمتوں میں 5% کا اضافہ ہو گیا۔ امریکی خام تیل 5.38% اضافے سے $88 فی بیرل کے قریب جا پہنچا۔ لندن برنٹ آئل 5.32% مہنگا ہو کر $92.48 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران امریکہ جنگ جلد ختم ہونے کے بیان کے بعد 17% کی بڑی کمی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حکومتی اقدامات پٹرول اور ڈیزل کے بعد LPG لے کر 4 جہاز پہنچ گئے۔ LPG کی قلت کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ ترجمان اوگرا نے کہا ہے کہ ملک بھر میں LPG مہنگی کرنے والوں کے خلیے کریک ڈاؤن ہوگا۔ اوگرا نے بھی LPG کی قیمت میں بلا جواز اضافے پر ایکشن کا اعلان کر دیا۔ ترجمان اوگرا نے کہا ہے کہ ملک بھر میں LPG مہنگی کرنے والوں کے لیے کریک ڈاؤن ہوگا۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کے مطابق نیویگیٹر اٹلانٹک بحری جہاز سے تقریباً 12,000 ٹن LPG ڈسچارج کی۔ پورٹ حکام کے مطابق نیویگیٹر ایریز SSGC ٹرمینل پر موجود ہے۔ پورٹ قاسم انتظامیہ کے مطابق نیویگیٹر ایریز سے 11,000 ٹن LPG حاصل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کے مطابق MD-23 جہاز 3500 ٹن LPG ڈسچارج کرنے کے بعد بندرگاہ کے باہر کھڑا ہے۔
LPG की कीमतें मुकर्ररा तरीक़े कार के मुताबिक जारी की जाएंगी। ओगरा ने वाज़ेह कर कीमतों का तयन हर माह की 1 तारीख से माहानों आम बुनियादों पर ही किया जाएगा। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक इस वक्त ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में किसी नए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इसलिए कीमतों में इजाफे से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरें और अफवाहें दुरुस्त नहीं हैं। ओगरा ने आवाम से अपील की है कि मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और अगर कहीं ज़ायद कीमत वसूल की जा रही है या कीमतों में रद्द-बदल की शिकायत हो तो फौरी तौर पर मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया को इत्तला दी जाए। बल्दिया उस्मा मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। KMC के बाद अब गुलबर्ग टाउन के मुलाजमीन भी तनख्वाहों की अदम अदायगी से परेशान हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन फंक्शनल लीग के सदर सलीम सिद्दीकी के मुताबिक गुलबर्ग टाउन के 1200 से ज़ायद मुलाजमीन ताहाल फरवरी की तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बायस मुलाजमीन में शदीद तशवीश पाई जाती है। जिस तरह पूरी दुनिया के हालात जंगी हालात चल रहे हैं और कराची में पाकिस्तान में जिस तरह पेट्रोल की महंगाई बम गिरा है आवाम के ऊपर, इस तनाजुर में मैं आपसे बात करूंगा रिजवान साहब कि जिस तरह KMC के 14,000 मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं हो सकी अभी तक, आज की 11 तारीख तक, और उनके पेंशन के हवाले से भी लोग बेचारे बहुत ही मजलूम परेशान हैं। उसके लिए हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं। और गुलबर्ग टाउन में जनाब अली ये सूरत हाल है कि पिछले 10 दिनों में हमारे यहाँ 3 म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसकी वजह तो खैर गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है। हम नासिर हुसैन शाह साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि इस मसले को बहुत जल्दी और बहुत उससे देखें, अपनी प्रायोरिटी पर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ के तकरीबन 1200 के करीब मुलाजमीन हैं जो तनख्वाहों से महरूम हैं और आज 11 तारीख हो चुकी है, अभी तक तनख्वाहें नहीं हुई हैं यहाँ पर। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 16 तारीख को एडवांस सैलरी का भी ऑर्डर निकाल दिया है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अरबाब इख्तियार से। होलसेल जूना मार्केट में फुटवेयर का सीज़न बुरी तरह मुतासर हो गया। सदर चप्पल यूनियन रईस खान के मुताबिक महंगाई और अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने के बायस खरीदो फरोख्त में शदीद कमी आई। ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। जूना मार्केट में फुटवेयर सीज़न ठप, महंगाई ने चप्पल के कारोबार को बुरी तरह मुतासर कर दिया। अफगानिस्तान बॉर्डर बंद, अरबों रुपए कारोबार मुतासर। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में खरीदो फरोख्त में बड़ी कमी। सदर जूना मार्केट चप्पल यूनियन के रईस खान ने बताया कि महंगाई के बायस मुल्क भर में सप्लाई का निज़ाम भी मुतासर हुआ है, जिसके बायस फुटवेयर की होलसेल मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियाँ सुस्त पड़ गई हैं। जूता जो है वो महंगा नहीं हुआ है। जूता तकरीबन साल 1.5 साल से वही रेट है। अभी ये जंग की वजह से तकरीबन 200-300 रुपये जोड़ा बढ़ा है, लेकिन लोगों के पास स्टॉक है तो इसकी वजह से वो पुराने ही रेटों पे बेच रहे हैं, कोई भी नए रेट पे नहीं बेच रहा है। लेकिन अभी जंग की वजह से को माल नहीं जा सका, जिससे ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट से, जूना मार्केट से अफगानिस्तान, कंधार, काबुल, गजनी बहुत माल जाता था भाई। इस दफ़ा ये सीज़न हमारा लगा ही नहीं, इस वजह से हम जूना मार्केट के दुकानदारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जूना मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के साथ सरहदी तिजारत बहाल की जाए और महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि फुटवेयर के कारोबार को दोबारा बहाल किया जा सके। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में क़िल्लत आब के बाद आलूदा पानी की फराहमी। क़य्यूमाबाद में घरों में पानी की लाइन में गंदा पानी आने लगा। इलाका मकीन कहते हैं कि नाले से गुजरने वाले पानी का पाइप टूट गया है। 3 माह में वाटर कॉरपोरेशन कोई इक़दाम नहीं किए। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में भी शहरी पानी की किल्लत का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदा पानी लाइनों में आने लगा। क़य्यूमाबाद के मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं घर की लाइनों में गटर का पानी शामिल हो गया है जो पीने के काबिल नहीं रहा। रिहायशियों ने बताया कि नाले से गुजरने वाली पानी की लाइन टूट गई, जिसके बाइस गंदा पानी हमारे घरों में आने लगा। पीछे नदी में सारा गंदा पानी है, वहाँ से पाइप लाइन टूट जाती है, सारा गंदा पानी पीने का खराब हो जाता है। टैंकर के लिए गुंजाइश नहीं बनती है, डब्बों से भर भर के लाते हैं। आलूदा पानी के बाइस शहरियों को पीने के साफ पानी के लिए टैंकर और फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जबकि टैंकर माफिया भी महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिससे मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पानी का यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता है, टैंकर डलवाने पड़ते हैं। के सवाए अगर आता है तो भी गंदा पानी आता है। बिल्कुल 1400-1500 रुपये का टैंकर है छोटा, और 800 रुपये की छोटी टैंकियाँ हैं, वो 800 रुपये की मिलती है।
जो तकरीबन 1 दिन 2 दिन भी मुश्किल से चलती है। इलाका मुकीनों ने मुतालबा किया है कि टूटी हुई पानी की लाइन दुरुस्त करके साफ पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन रिजवान खालिद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया का एक मुस्बत इक़दाम सामने आया, जहां 6 बरस बाद न्यूरो सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर दोबारा फाल कर दिया गया। सर्जरी का आगाज़ हो गया है, जिससे मरीजों को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। अमराज के मरीजों के लिए उम्मीद, अब्बासी शहीद अस्पताल में इलाज मजीद आसान हो गया। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया ने 6 साल बाद न्यूरो सर्जरी का शोबा फाल कर दिया है। ओपीडी तो गुज़िश्ता कई बरसों से जारी थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर गैर फाल था। इस हवाले से अस्पताल के एमएस डॉक्टर अब्दुल साजिद खान और न्यूरो सर्जन डॉक्टर फरहान गुलजार का कहना है कि अब ऑपरेशन थिएटर फाल करके सर्जरीज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसके बाद मरीजों को इलाज के लिए दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने न्यूरो सर्जरी वार्ड का भरपूर तरीके से आगाज़ कर दिया है और उनकी सर्जरीज भी स्टार्ट हो गई हैं और हर हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह न्यूरो सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर जो वो फाल होता है और उनकी पेशेंट की सर्जरीज होती हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 6 साल से यहाँ पे सर्जरीज न्यूरो सर्जरी की कोई भी नहीं हो रही थी। हमने यहाँ पे जो है वो जो सहूलियात मौजूद हैं उनको बरूए कार लाते हुए सर्जरी शुरू की हैं। हम इंशाल्लाह आगे इन सर्जरीज को और बढ़ाएंगे भी और प्रॉपर। इस मौके पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साद और डॉक्टर सादिया अफसर ने कहा कि अब अब्बासी शहीद अस्पताल में रीढ़ की हड्डी और दिमागी अमराज के मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज एक कामयाब सर्जरी भी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में अब न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज पहले से चल रही थी, ओपीडी सर्विसेज मौजूद थी, लेकिन अब सर्जरीज भी स्टार्ट कर दी गई हैं। गुज़श्ता हफ्ते के अंदर हमने एक मरीज़ को ऑपरेट किया है जिसकी कमर में शदीद तकलीफ़ थी, जो तकलीफ़ कमर से लेकर पूरे पैर में आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि न्यूरो सर्जरी इंतज़ामिया की कोशिशों और हमारी कोशिशों से अब जो है वो फ़ाल हो गया है और उसमें हमने पहली जो है एक स्पाइनल न्यूरो सर्जरी बहुत कामयाबी के साथ की है। इंतजामिया का कहना था कि बहुत जल्द अस्पताल में मजीद तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएंगी ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर तेजी के बाद कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी से 1,55,858 पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम आज मंदी पर हुआ। KSE 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी के बाद 1,55,858 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,58,624 जबकि कम तरीन सतह 1,55,652 रही। मार्केट माहिरीन के मुताबिक बुध को आलमी हिस्सेस बाजारों में तेल की कीमतों में आर्जी कमी के बायस कुछ इस्तेहकाम देखा गया। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग से मुतालिक इशारों के बायस सरमायाकार तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। आलमी अफरात ज़र और शराय नमू पर इसके असरात का जायजा ले रहे हैं। इसी जो क्रूड ऑयल डिक्रीज हुआ है इसकी वजह से मार्केट पर पॉजिटिव असर आया है और दूसरी जानिब ये कि स्टेट बैंक ने भी अपना पॉलिसी रेट बरकरार रखा था, ये भी कल मार्केट पे एक अच्छा पॉजिटिव था। और ये है कि अब जंग की खत्म होने की बातें हो रही हैं तो इससे लोगों को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने लो पे थी तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इस वजह से मार्केट में थोड़ी तेजी नजर। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने के नर्ख मजीद बढ़ गए। 1 तोला सोना 3,700 रुपये और 10 ग्राम सोना 3,172 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत बरकरार है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $37 महंगा होकर $5,205 फी औंस पर पहुँच गया। इस इजाफे पर मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना 3,700 रुपये बढ़कर 5,43,262 रुपये पर जा पहुँचा। 10 ग्राम सोना 3,172 रुपये महंगा होकर 4,65,759 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 9,354 रुपये पर बरकरार है।